us today is a very special guest, a person who's no stranger to controversy, and these elections also, his candidature has sparked off quite a political fight. With us is Mr. Nawab Malik, who's in fact the candidate of the NCP Ajit Pawar faction from the Mankhood constituency. Thank you so much, sir, for joining us. And let me begin by asking you, why have you chosen to contest from the Mankhood Shivajinagar seat? Because it is a seat where Abu Azmi has won elections for at least the past decade and a half. What prompted you to choose this seat? The 5 times I had been won by 2 different constituencies. Where we are sitting here in the school, it was a Nehru Nagar constituency in by-election 1996. When the BJP Sena government was there in the state of Maharashtra, I had elected by people in 1996 first time as a Samajwadi Party candidate. Before that, I lost in 1995 in same constituency. Then 1999, people repeated me here from double margin. Then in 2004 also they elected me. After delimitation, I had been shifted to Anushakti Nagar. And in 2009, people elected me. 2014, I lost by 1007 votes. Then in 2019, people elected me. And that time, a different kind of a government had been take place in the state of Maharashtra. I had been made a minister, then I was arrested. When I took a charge of as a minister, I have given responsibility to my daughter, Sana Malik, to look after day-to-day activities of the constituency, public relation, public grievances, developmental work, everything she was looking after. And I was guardian minister to Gondia as well, Parbhani. So I don't have a time to give to the constituency. That's why the responsibility of constituency were with her. Then I was arrested. At that time also she was in the contact with the voter of the constituency, people of the constituency. When I released on the bail on medical ground, after 2 months I resumed my office. I was attending my office at 10 o'clock. Then my daughter, she is having 2 daughters and husband, from sending girls to the school, her personal work, then she was attending at 11 o'clock. So 1 hour gap was there. People were coming to the office. A crowd were there. And I asked my staff that send them, I am sitting here. 2-4 people were connecting me or coming to me. Rest of the people, they are saying, I saw they are saying, we want to meet Sana. So repeatedly I saw the people are connected with the Sana Malik. Then I decided next time she will be the candidate for Anushakti Nagar. I will not contest any election. After Lok Sabha election result, people of the Shivajinagar Mankhood repeatedly coming to me from various classes, even smaller traders, educationists, NGO people, political party workers, and common men. Everybody were eager that I should contest from Shivajinagar Mankhood constituency. They were upset. There is a huge drug business in Shivajinagar Mankhood constituency. Where you can see the people are sitting, consuming drug over there. The small child, even 10-year, 8-year boys are consuming drugs over there. Different kind of drugs were consumed over there. The goons are there. The Samajwadi Party people, they are doing this kind of activities. Nobody can raise voice against them. People were fed up. 15 years they were even doesn't have a voice to raise. If anybody do any activities against them, anybody complain that there is a garbage problem or there is a nala problem, water scarcity, even the one candidate, she is contesting from this constituency. She was working with some NGO. She complained there. Her clothes were, उसको मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए. इस तरह की चीजें थी, लोगों में परेशानी थी. मैंने जानकारी ली और पूरी तरह से हम देखेंगे तो पूरा सोशल मीडिया में सारे एविडेंस थे.
तब हजारों की तादाद में लोग मेरे पास आने लगे। तब मैंने तय किया कि ठीक है, एक चैलेंज है तो हमें स्वीकारना चाहिए। और लेकिन आप ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है महायुति के। बीजेपी ने आपका जो कैंडिडेचर है उसको अपोज किया है, शिवसेना शिंदे ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल फाइट लग रही है। देखिए, ये सही है कि बीजेपी का मुझे विरोध है। ये भी सही है कि महायुति का कैंडिडेट वहां पे है। लेकिन अजीत पवार जी ने मुझे एनसीपी का कैंडिडेट बनाया, ये भी उतनी बात सही है। ऑल पार्टी वर्सेस एनसीपी नवाब मलिक, ये सिचुएशन है, इसे हम डिनाई नहीं करते। लेकिन जब लोग आपको चुनाव लड़ाने के लिए बुलाते हैं, तब चुनाव लोग अपने हाथ में ले लेते हैं, तो अलग तरह का चुनाव वहां पे है। और मुझे लगता है जब नतीजा आएगा तो चौंकाने वाला होगा। जी, पर क्या एक तरह की स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम वोट को बांटा जाए, नहीं क्योंकि नहीं अबू आजमी जी हैं और आप हैं, तो जाहिर तौर पे जो मुस्लिम वोट है वो तो बटेगा ही वहां पे। देखिए, ऐसा है, लोकसभा का आप रिजल्ट देखोगे तो लोकसभा में 1,18,000 के करीब वोट मिला है महाविकास आघाड़ी को, और 28,000 के करीब वोट मिला है महायुति को। तो 90,000 का डिफरेंस वहां पे है। इवन महायुति कभी भी जीत ही नहीं सकते। और मैं आपको बता दूं, महायुति का जो उम्मीदवार है, अब नतीजा आएगा तो देखेंगे, वो 8,000 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सवाल डिवीजन होगा, मुस्लिम वोट बटेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने से कोई अबू आसिम को या मुझे नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा, ऐसी चीजें नहीं है। पीपल आर फेड अप। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे बदलाव हो। लोगों ने मुझे वहाँ पर ले जाकर खड़ा किया है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो डिवीजन नहीं, पूरी तरह से डिस्पाइट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ऑल पीपल आर विद मी, एंड यू विल सी ऑन 23rd द डिफरेंट रिजल्ट विल बी देयर। ये जो आप कह रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं कि पीपल आर फेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एटसेट्रा। सिमिलर थिंग हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय अजित पवार वेयर ही सेज बटेंगे कटेंगे, दिस स्लोगन विल वर्क इन यूपी, इट विल नॉट वर्क इन महाराष्ट्र। सो इज एनसीपी अजित पवार faction taking a very different line from your alliance partners? Because the Congress's accusation is that, you know, the BJP and Shinde Sena etc., they are trying to polarize, to divide, but here you have Ajit Pawar also speaking a similar language. So many people are questioning whether there is a divide within the alliance. नो सी, वी आर स्टिक टू आवर आइडियोलॉजी। हम अपनी विचारधारा पे कायम है। अजीत पवार जी ने बार बार साफ किया और मैं भी क्लियर कर रहा हूँ। साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा, लोकतंत्र में विश्वास की विचारधारा, हमने अपनी विचारधारा छोड़ी नहीं है। हम अपने विचारधारा पे कायम है। और ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। जो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं, उनसे सीधा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी से कभी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट पवार साहब ने नहीं किया? 1978 में प्लोथ का फार्मूला बनाया, और 87 तक वो प्लोथ का भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका पॉलिटिकल अलायंस रहा। लेकिन पवार साहब ने क्या अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी? नहीं। समाजवादी पार्टी का जब जनता दल का फॉर्मेशन हुआ, 89 में मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने। लालू यादव जी का बिहार में वही राजनीति थी। जो आज लोग हैं, तमिलनाडु के जो स्टैलिन हैं, वो भी कहीं ना कहीं अटल जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग थे। झारखंड के नेता भी उनके साथ थे, ममता जी भी उनके साथ थी। इवन जब 84 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जो चुनाव हो रहा था, नेशनल लेवल पे जो अलायंस बन रहा था रामो वामो का, उनका भी भारतीय जनता पार्टी से एडजस्टमेंट था। वीपी सिंह की सरकार में दोनों लोग समर्थन कर रहे थे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी को कायम रख के पॉलिटिकल एडजस्टमेंट किया है। अजीत पवार पहले व्यक्ति नहीं कि जिन्होंने इस तरह की राजनीति की है। लेकिन जो भी विचारधारा है उस पर हम कायम है। देखिए, महाराष्ट्र में अलग तरह की एक इस बार चुनाव है। पूरी एक हवा, कहीं भी कोई वेव किसी की नहीं है। नतीजे एकदम कांटे की लड़ाई है, टफ फाइट हो रही है। नतीजे आएंगे, अजीत पवार किंग मेकर होंगे, हम लोग किंग मेकर होंगे, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज आप कह रहे हैं। किंग बिल्कुल, मेकर ही कैसे विल क्या बी है? द किंग मेकर। किसी के पास इतनी सीटें नहीं आएगी कि किसी को छोड़कर कोई सरकार बना ले। अजीत पवार ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे, किंग मेकर होंगे, और अपनी शर्तों में हम सरकार में रहेंगे। लेकिन जो उन्होंने अलग पोजीशनिंग ली है, क्या इसका मतलब है कि वो चुनाव के बाद सारे ऑप्शंस खुले हैं दोनों देखिए, साइड के? राजनीति में कुछ भी संभव है। 2019 में कोई बोल सकता था कि ये इस तरह की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है? चीजें, नतीजे आने दीजिए। अपनी शर्तों पे ही सरकार में हम जाएंगे,
और 2024 के जो भी नतीजे आएंगे अजीत पवार उसमें किंग मेकर होंगे। और हमें लगता है कि चुनाव के नतीजे आने दीजिए, देखिए चीजें क्या होती है। लेकिन आप क्योंकि शरद पवार जी के भी पास हैं और कह रहे हैं कि सारी चीजें हो सकती हैं, तो क्या पॉसिबल है कि शरद पवार जी और अजित पवार जी एक साथ आ जाएं चुनाव के बाद? एक हिंदी में कहावत है कि पानी पे लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। परिवार है, सभी कार्यकर्ता दोनों तरफ के चाहते हैं कि लोग एक हो जाए। महाराष्ट्र में जनता भी चाहती है कि दोनों नेता एक हो जाए, लेकिन जब तक दोनों नेता तय नहीं करेंगे तब तक ये चीजें संभव नहीं है कि दोनों नेताओं को तय करना है। लेकिन अजीत पवार जिस तरह के नतीजे आने वाले हैं, जो हम असेस कर रहे हैं, अजीत पवार जी किंग मेकर होंगे, इसमें कोई भी हमें शंका नहीं है। जी, लेकिन संभावना है आप कह रहे हैं। आपके विचार में क्या होना चाहिए कि ये जो संभावना है वो पूरी तरह से सच्चाई में बदल जाए? क्या कहेंगे? देखिए नतीजे आने दीजिए, अभी बहुत अर्ली है 23 को। जब नतीजे आएंगे 2 बजे के बाद इस पे बता सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है। अलायंसेस की तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे जो फडणवीस जी और बाकी जो बीजेपी लीडर्स हैं, दे आर एलिजिंग दैट यू हैव द टेरर लिंक्स सो योर विद दाऊद इब्राहिम योर कैंडिडेचर कैन नॉट बी सपोर्टेड, उनसे आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे उनका समर्थन चाहिए नहीं। मुझ पे बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों का, और ऐसा ही प्रेम वो मेरे ऊपर बनाए रखे। सवाल है जो दाऊद इब्राहिम, टेरर लिंक, ये सब गलत मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मैंने बार बार कहा है कि मैं उससे एग्जामिन करूंगा, और जो मेरी बदनामी की जा रही है, मेरी इमेज ब्लाइंड करने की कोशिश करी जा रही है, हम इसमें नोटिसेस भेजेंगे। अगर लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम क्रिमिनल एज वेल एज सिविल डिफेमेशन के सूट सब पर फाइल करेंगे। जो आपकी बेटी के खिलाफ, सना मलिक के खिलाफ जो खड़े हैं, वो एनसीपी एसपी के कैंडिडेट है, एक यंग फेस है, एक मुस्लिम फेस है। क्या इज दिस व्हाट इज हैपनिंग इन अनुशक्ति नगर, इज इट अ रिटेलिएशन टू योर कैंडिडेचर? आप उसे कैसे देखते हैं? ही वॉज विद समाजवादी पार्टी, ही वॉज अ चेलर टू अबुआ से आजमी। ही ट्राई मी टू थ्रेटन, अगर यहाँ लड़ोगे तो हम वहाँ लड़ा देंगे। ही इज नॉन एंटिटी। मुझे लगता है 5-6 साल पहले मुंबई शहर में आए, जिसे मुंबई नहीं पता है, जिसे अनुशक्ति नगर क्या है वो नहीं पता, बाउंड्रीज कहाँ है, डेमोग्राफी कैसी है, वहाँ के लोग क्या है, उनकी पहचान कैसी है, ये जिनको पता ही नहीं, बाहर से आके लोग चुनाव लड़ते हैं। लड़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि उनका वाइफ की वजह से कोई क्लाउड देख के पवार साहब ने या नेताओं ने टिकट दिया है, ठीक है दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि सना का आप कार्यालय जाके देखेंगे चुनाव का, उस कार्यालय में 4 से 5 लोगों से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। आप चुनाव के कार्यालय 36 विधानसभा में देखिए, या तो जो लोगों के पास लोग नहीं है उनके कार्यालय में लोग नहीं, या जो अच्छी तरह चुनाव लड़ता है, जब कार्यालय में भीड़ हो गई तो समझिए चुनाव गड़बड़ है। और कार्यालय में ना होके अगर कार्यकर्ता फील्ड में है तो चुनाव अच्छी तरह से चल रहा है। हमें लगता है बूथ वाइज पूरा हमारा कैडर है, हर बूथ में काम किया है, उसका कनेक्ट है हजारों महिलाओं से, हजारों कार्यकर्ताओं से। हमें लगता है कि जितना स्मूथ चुनाव अनुशक्ति नगर में चल रहा है, जो उम्मीदवार है वो कहीं फाइट में नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि चुनाव कहाँ है, कैसे लड़ा जाएगा, कौन सा कार्यकर्ता है, कौन सी जनता क्या चाहती है। हमें लगता है इतना आसान कैंडिडेट हमारे सामने है अनुशक्ति नगर में, इससे आसान कैंडिडेट नहीं हो सकता। जी सर, सवाल ये भी उठता है कि एक पिटिशन फाइल की गई है जिसमें आपकी बेल कैंसिल की जाए। ऐसे टाइम पे जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके कैंपेन पे डोंट यू थिंक इट विल नहीं, आज लिस्ट हुआ है, वो आज लिस्ट हुआ है, और उस पर क्या होता है देखेंगे। हमारे वकील वहाँ खड़े रहेंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है और हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। देखते हैं न्यायालय क्या फैसला करेगा। हमारे वकील भी वहाँ खड़े रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं बोलने लगा, जिस तरह से पॉलिटिकली मैं एक्टिव हो गया, मुझे लगता है जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उसके पीछे वे खड़े हैं। जी। एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो पॉलिटिकल डिवाइड है आपके अलायंस में, जो लगता है अजीत पवार ने पीएम की रैली बारामती में अटेंड नहीं किया। आज शिवाजी पार्क में रैली है पीएम की, उसमें बताया जा रहा है कि अजीत पवार नहीं जाएंगे। तो ऐसे क्या डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं चल रही है, क्या पोजिशनिंग चल रही है? आइडियोलॉजिकल बातें तो एक जगह है, नहीं, लेकिन पीएम जो है देश के नेता है, उनकी रैली में नहीं अगर नहीं, आपके देखिए वो अलायंस की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता है। प्रचार में प्रधानमंत्री की हैसियत से कोई नहीं जाता। प्रचार में बीजेपी के नेता की हैसियत से प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो उस पद को लेके प्रचार में नहीं जाता, वो अपने पार्टी के नेता की हैसियत से जाता है। अब जो भी पोजीशनिंग है लोगों के सामने आ रही है कि हम कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पे हम साथ में हैं, किन पे नहीं है। तो चीजें हैं, कुछ चीजें हम नहीं चाहते, फिर भी बीजेपी के लीडर बोलते हैं, तो उसका समर्थन हम कर नहीं सकते।
और जब इस तरह की बातें हों और वहाँ हमारा लीडर रहे तो हमारे ऊपर भी वो कहीं ना कहीं स्टिक हो जाती है चीजें। तो शायद इसी वजह से दादा नहीं जा रहे हैं। तो बट जाहिर बात है कि ये कुछ तो लग रहा है कि अलायंस में गड़बड़ी है, ये आप मानेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई किसी का परम मित्र परम शत्रु नहीं होता। परिस्थितियों के अनुरूप चीजें बदलती रहती है और हम अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर किसी के साथ उनके रंग में रंग नहीं जा सकते। हमारी अलग पहचान है, अलग विचारधारा है। बीजेपी की अलग पहचान, उनकी अलग विचारधारा। उनके तरफ से भी कहा जाता है ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, हमारे तरफ से भी। और समय समय पे सभी दल इस तरह के एडजस्टमेंट करते हैं। बीजेपी ने तो महबूबा जी से भी एडजस्टमेंट किया था। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें होती रहती है, लेकिन विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जी, लेकिन एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल, क्योंकि आप अजीत पवार जी से भी आपकी बातचीत है, बताया जाता है कि आप शरद पवार जी के भी क्लोज हैं। कभी पर्सनल बातचीत में पॉसिबिलिटी वापस रियूनाइटेशन की कभी बात हुई है? सभी लोग चाहते हैं लोग एक हो जाए। पहले भी मैंने कहा, मेरे तो ताल्लुका उद्धव जी से भी अच्छे हैं। मैं तो उनका आभारी हूँ, पवार साहब का, उद्धव ठाकरे जी का। क्या कहे, केजरीवाल जी जेल में रहकर मुख्यमंत्री रहे और नवाब मलिक दूसरा ऐसा व्यक्ति है कि जेल में भी वो मंत्री रहा। सरकार गिरी तो मेरा मंत्री पद चला गया, लेकिन मुझे हटाया नहीं गया। तो मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। जी, इस बार मैं कुछ और इश्यूज पे आना चाहूंगा जो महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि करीब 260 के आसपास कैंडिडेट्स वो सपोर्ट कर रहे हैं, और वो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स हैं। इसका क्या असर आप देख रहे हैं इस पूरे नहीं, इसमें? क्योंकि मुझे नहीं आप दूसरे लगता। अलायंस की तरफ से आप नहीं, लड़ रहे मुझे नहीं लगता महाविकास आघाड़ी को ही उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने अलग जगह अलग अलग लोगों को सपोर्ट किया है। जैसे कुर्ला में हम लोग बैठे हैं, एक इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है, जिसका जो हस्बैंड है वो एक नटोरियस कॉप था। अब उसको क्यों किया है, ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में है। एक नटोरियस कॉप जो नॉन एंटिटी है, वहां उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे क्या चीज है? अब जहाँ पे ड्रग को लेके पूरा मुसलमान खिलाफ है, आप वहाँ पे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ अलग अलग इश्यूज पे जो कम्युनिटी बटी हुई है, मुझे लगता है इस तरह से कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हो जाती है कि हमारे बोल देने से मतदाता वोट डाल देता है। हैं। आपको बता दूं, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, इमाम बुखारी ने बयान दिया था और लोगों को लगा कि बुखारी के फतवे से चुनाव जीता गया। फिर लगातार वो हर बार अपनी सपोर्ट डिक्लेयर करते थे, कभी जीते लोग, लेकिन उसके बाद जब जब वो सपोर्ट डिक्लेयर करते रहे, पूरी तरह से सफाया होता रहा। तो गलत फहमियाँ हो जाती हैं। अपना काम जिनका है, रिलीजियस जो लीडर्स हैं, उनका काम है रिलीजन के जो इश्यूज है उसमें काम करना। कोई प्रॉब्लम है उसको रेस करना। लेकिन हमारे सपोर्ट से कैंडिडेट जीत जाएगा, हमारे सपोर्ट से कैंडिडेट हट जाएगा, वो कोई भी रिलीजियस लीडर हो, किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, ये नहीं होता कि उनके साथ पूरे इंटैक्ट लोग चलते हैं। और जिस तरह से अभी जो सपोर्ट अलग आया है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये होता ही है, आप जो भी कहें कि अल्टीमेटली असर क्या होगा वोटर्स पे या फाइनल रिजल्ट पे, लेकिन बीजेपी को जरूर ये मौका मिला, और बीजेपी कह भी रही है, जो आपके अलायंस पार्टनर है, कि ये एक तरह से ओपन वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो सामने दर्शाया जा रहा है। तो आप अब क्या ये कहेंगे? ये सपोर्ट करने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है कि फायदा? ये आपके जवाब सवाल में ही जवाब है। इस तरह के जो लोग होते हैं, दिखते कुछ, मतलब डबल एज तलवार है, चलती किसी तरफ है, कटता कोई और है। राजनीति होती है। लेकिन मैं बता दूं, मेरे खिलाफ उन्होंने दोनों जगह, मेरी बेटी के खिलाफ और मेरे खिलाफ सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां उन्होंने सपोर्ट डिक्लेयर किया है, कुर्ला, जहां मैं पहले एमएलए था, अणुशक्ति नगर जहां मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है, शिवाजी नगर जहां मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तीनों जगह उनके सपोर्ट का असर नहीं होगा। उसके उलट लोग वोटिंग करेंगे। जी, और आप क्या कहेंगे कि जो उलेमा बोर्ड, एक खबर आई थी कुछ दिन पहले, आपने भी देखी होगी, कि उलेमा बोर्ड ने 10% रिजर्वेशन मांगा था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बीजेपी का कहना है, और कुछ कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं जहां आंध्र प्रदेश और कुछ और नहीं, राज्यों देखिए, में ऐसा किया गया है। है रिजर्वेशन धर्म के आधार पे नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, तो ऐसा आप है इस डिमांड को आप कितना लेजिटिमेट कि मानते हैं? धर्म के आधार पे तो रिजर्वेशन से रोका भी गया। 30 जनवरी 1950 का जो गैजेट है, वो धर्म के आधार पे जो शेड्यूल कास्ट मुस्लिम है उनके रिजर्वेशन को रोका गया। जो शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन है उनके रिजर्वेशन को रोका गया। अगर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन रोका जा सकता है तो दिया भी जा सकता है, ये मैं इसकी वकालत करता हूँ। सवाल है, जो मंडल आयोग के समय 50% की मर्यादा रखी गई थी, या उससे पहले जो मर्यादा थी उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते, इस तरह का
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। उसके बाद 5% और बढ़ाया गया ईडब्ल्यूएस के लिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा, कोई भी आरक्षण कोई भी राज्य सरकार दे दे, न्यायालय में कोई टिकता नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मांग आती रहती है, लोग फैसला करते रहते हैं, कोर्ट में स्टक डाउन हो जाता है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने आईना देश को दिखाया है। देश में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिति बहुत खराब है। उन्हें कहीं ना कहीं आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में कम है लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाई लिखाई में देखो तो पीछे है। ये सारी चीजें हैं। अगर कोई समाज का तबका दबा कुचला है, कमजोर है, तो उसे आगे लाने के लिए सरकारों को आगे आना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके जो जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता है तो सरकारों को करना चाहिए। ये इस बार की महाराष्ट्र चुनाव में जो भाषा है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आप कभी देखते हैं वोट जिहाद की बात होती है, किसी के बाप रजाकार थे बात होती है, कोई कब्र की बात करता है, कोई कुत्ते की बात करता है। तो इस बार जो पॉलिटिक्स, आप क्या मानते हैं कि हर बार ऐसे ही पॉलिटिक्स होता है या इस बार जो पॉलिटिक्स का स्तर है कुछ ज्यादा ही गिरा है? देखिए, जिहाद शब्द का अर्थ लोगों को समझना पड़ेगा। जिहाद बना है जद्दोजहद, कोशिश करना, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, ये उसके शाब्दिक अर्थ हैं। महाराष्ट्र में, देश में, दुनिया में इस तरह के स्लोगन लगते रहते हैं कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो शब्दों से खेला जा रहा है। कोई जिहाद, संघर्ष, ओट का संघर्ष, अगर उसके मायने आप समझा दो कि ओट का संघर्ष हुआ तो वो बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक अरबी शब्द है, उसको लेके पोलराइज करने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है। हमें लगता है कि जिसकी जो राजनीति है उसी तरह से बातों को रखता है, लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं। लेकिन जहाँ तक भाषा की मर्यादा है, लोग मर्यादा छोड़ रहे हैं, ये भी सच्चाई है। हर चुनाव में इस तरह से चीजें होती रहती है, लेकिन भाषा मर्यादा में हो तो बेहतर होता है। बहुत सारे लोग हैं भावना में बह जाते हैं, बहुत सारे लोग जानबूझ के बोलते हैं ताकि वो हेडलाइन बन जाए, वो इशू बन जाए। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन को भी पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते, ये पूरी गाइडलाइन में लिखा है। अगर कोई लड़ता है, किसी भी पार्टी का हो, आइदर साइड हो, सभी पे उनको एक वॉचडॉग की तरह देखना चाहिए। हमने देखा है जी, कि मुंबई में धर्म के नाम पे वोट मांगे गए तो नेहरू नगर विधानसभा का चुनाव रद्द हुआ, विले पार्ले का चुनाव रद्द हुआ, वहाँ पे और एक चुनाव रद्द हुआ। तो इससे पहले चुनाव आयोग ने, न्यायालय ने धर्म पर आधारित राजनीति और वोट मांगने पे चुनाव कैंसिल किए हैं। थोड़ा इलेक्शन कमीशन और न्यायालय टाइट हो जाए, चुनाव रद्द होने लगे, तो इस तरह की भाषा का प्रयोग थम जाएगा। जी। एक आखिरी सवाल, आपने पहले में कहा है कि अगर बीजेपी सरकार, मायावती की सरकार आती है तो इसमें आप मंत्री पद नहीं लेंगे। मैं कभी मंत्री नहीं बनूंगा, ये मैंने कहा। क्यों? किसी की भी सरकार बने, मुझे मंत्री बनने की कोई लालसा नहीं। मैं 6 बार मंत्री रहा हूँ। मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं सरकारी घर में कभी रहा नहीं, लोगों के बीच में रहा। मेरे परिवार के पास जो भी संपत्ति है, जो भी हमारे पास है, हमारे खाने जीने के लिए काफी है। लोग मंत्री बनते हैं, कोई उनकी अलग अलग किसी की चीजें होगी, लेकिन हम पूरी तरह से समाधानी हैं। हम लोगों का काम करना चाहते हैं। नवाब मलिक मंत्री रहे या ना रहे, लेकिन जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, किस तरह से लोगों के सवालों को छुड़ाया जा सकता है, जिस तरह से, किस तरह से डेवलपमेंट कराया जा सकता है, किस तरह से प्रशासन पे दबाव लाया जा सकता है। विधानसभा एक माध्यम है और हमारे अधिकार है आमदार के नाते, विधायक के नाते, उसका इस्तेमाल करके मैं लोगों के काम कर सकता हूँ। मंत्री सना बनना मलिक है, को भी मंत्री नहीं बनने देंगे? नहीं, अभी अभी तो उसका स्टार्ट हो रहा है कैरियर, फर्स्ट टाइमर है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन आज मैं बोल दूं वो कभी नहीं बनेगी। कैरियर है, हमने गाइड किया, वो पॉलिटिक्स में आ गई, उसके बाद निर्णय लेने का अधिकार उसका होगा। हम गाइड कर सकते हैं, अल्टीमेट निर्णय उसको लेना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।